Cell cycle and cell division is the topic that we'll be discussing today. As in the previous classes, we have already spoken about what the cell is. Anybody who can let me know? One at a time. Cell. Why does it divide, first of all? To make new cells. To make new cells. What is the requirement for making new cells? Why is it required? Independent existence. A single cell can survive independently, right? Isn't it? Unicellular organisms hai. Then why? Why? Sorry? Make? Who was it? Make tissues. Okay. To upgrade the level of organization, right? Cell division. Okay. For, upgrading the organizational level. I mean the hierarchy. I hope the statement is clear in here. To improvise, to more complicate the living organisms and their organization of cells, right? So, in the course of evolution, we always see that cellular level of organization is present. Then comes tissue level, then organ system level, and then that's how we define an organism, right? So the complicated systems are more efficient, and therefore human beings are considered as the highest evolved beings, and they are having endless ability. Why? Because of the level of organization, the complexity in them. Clear? Now, the other obvious reasons for cell division to occur are growth and reproduction, right? Growth and reproduction. Now, even if we talk about a unicellular organism, for them to be able to grow, they need to divide. For them to be able to reproduce, they need to divide, right? So, growth and reproduction from the very unicellular organism till the highest evolved human beings, cell division is a must, right? Now, these two processes are simultaneously occurring, yes, in another, in unicellular organisms. While talking about the complicated beings like us, the multicellular organisms, इसमें growth in what context? Growth from inside, intrinsic growth. Intrinsic growth, good. And the other reason would be, after we attain, we don't exhibit continuous growth, right? Yes. It will be certain up to a age. Yeah. We show, yeah, in animals. Certain age. Continuous growth, right? Okay. So my question is cell division taking place only up to the age till we are growing? Yes. No. Yes. I don't understand nodding. Verbal. Is cell division limited till the growth phase in multicellular organisms, not just in animals in general? In animals, everybody comes in there. Understand this thing. Cells, major cells does, but then, okay, I'll restate it. The people are partially correct, but what I am actually trying to ask is, animal cells में हम लोग देखें growth takes place only up to a certain age. After that it stops. And here what did I say? Cell division होता primary reasons उसके growth और reproduction है. So my question is, जब growth phase terminate हो जाता animals में,
क्या सेल डिवीजन भी टर्मिनेट हो जाता? नहीं. Why? Yes. Why? नहीं कवर सेल डिवाइड तो कंटिन्यूअसली होते रहता. सेल डिवीजन तो कंटिन्यूअसली होते रहता. क्यों होता है? ग्रोथ फेज टर्मिनेट हो गया है. ग्रोथ ही करना है तो क्यों सेल डिवाइड? नहीं, आफ्टर दैट ग्रोथ. सिर्फ ग्रोथ का तो ले सकते हैं ना, अपन दूसरे भी चीजें आगे. वेरी गुड. देयर इज सेल रिपेयर, यू नो. रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए cell has to divide. I asked cell division, will it terminate? I did not say कि growth तो वैसे भी terminate हो ही जाएगा ना. And in your case differentiate होके they are into G0 phase. Whenever required they have the ability to divide, isn't it? So cell division will take place. We have attained a certain amount, age जहाँ पे growth हो गई. Adolescence खत्म, teenage खत्म, आपका more or less in your early 20s you have attained your actual size. ठीक है? In terms of growth, height and width and all that, it differs based on your lifestyle again, your body weight etc. mass. But आपकी जो overall bones की जो growth है, height की मैं अगर बात करूँ तो after a certain period it stops and it is a fact. But cell division is not just taking for growth to occur or reproduction to occur. There are many other processes in our body which require cell division to be happening in order for the survival of a human being. Am I making sense? Be very clear with the concept, right? Cell division, growth होने के बाद में reproduction भी एक किस्म से हम लोग देख ले रहे कि हाँ हो गया reproduction के लिए भी. When you attain, see, growth complete हुई, growth phase, reproductive phase में you're going, right? Reproductive phase में आपके cells, germ cells divide होते, they become active and you're reproductively ready, active. ठीक है? तब आपकी body की growth रुक गई, but then cell division का purpose change हो गया. It is dividing. Earlier it was for your increase in the bone density, length, whatever. अभी reproductive phase में तो उसमें early adulthood until the late whatever adulthood आपका, उसमें repair, wear and tear होता, it has to repair things and then maintain stuff. तो उसके लिए भी cell division ज़रूरी है. We exfoliate, girls are into a lot of skin routine, if any. So we know that the superficial layer of skin cells, they die every single day, right? We have dead skin cells. Yeah. So cells do divide in spite of the fact that animals may growth terminated रहती है. Okay? तो up to a certain age ही होती है. Cell division होगा. Reasons are the above, the following which we discussed. Reproduction, it is well understood, right? The specific process by the name meiosis, उसमें हम लोग detail में discuss करेंगे about reproduction. For now, living organisms में दोनों ही process synonymous रहते हैं, इतना जानना ज़रूरी है, right? What did I say? Now, talking about cell division, there are two types of cell divisions. What are they? Cell division. Meiosis, mitosis. Good. Mitosis and your meiosis. ठीक है? Mitosis and meiosis. हमको समझ में आ गया कि cell division की ज़रूरत क्यों है, First, कोई भी process हो रहा, know the why behind. ठीक है? When you know the why, now come to how the things are going on. Mitosis, meiosis, there are two types of cell division. If I, have to give the gist of both the processes, I would state it this way. It takes place. Okay, it is also known as equational division. Good. Reduction. Equational division, and this would be reductional division. Reductional division. Now, it takes place. You
Carry on. Before discussing in what type of cells it occurs, we will understand the term ploidy. What is the meaning of ploidy, anyone? Chromosomes. Good. Set of chromosomes is nothing but ploidy. Now, every species has their specific chromosomal number. They do, right? So, at the time of division, it has to be maintained. कोई भी type of division हो, may that be a mitosis or meiosis, every cell, अगर reproduction की बात करें, जो further offspring बनने वाला है, it has to have 46 chromosomes for it to be a human being. Also, the body cells which are dividing, to them to be belonging to us only, एक skin cell divide हो रहा by mitosis, it should have 46 chromosomes only, right? It cannot have more or less than that. Only then it will belong to us. Clear? Other species. As a species, and it will not be a successful cell division, a normal process. It will have complications. We'll discuss about those as well. For now, it is the importance, and ploidy is nothing but the set of chromosomes, right? How many sets of chromosomes do we have? 26 chromosomes, 23 pairs. The answer to this question is a question. You people should ask. You asked set of chromosomes. So, or a pair of chromosomes. I did ask set of chromosomes, but आप लोग का सवाल पहले ये होना चाहिए था कि in a haploid cell or a diploid cell. Yeah, I know I did not say what is haploid and diploid cells, but then the answer to it was not a direct one. Haploid मतलब one set of chromosome. Diploid मतलब two sets of chromosomes. Am I clear? Here n is nothing but set of chromosomes, okay? Number of chromosomes, you can take it. Two sets. What is the chromosomal number of human beings? 2n. 46. 46 is the 2n, diploid. Two No. sets, 23 one and 23. Good. So what would be the haploid one? It will be 23 because, 26. okay, it will give rise to 23 number. So this is the haploid set, this is the diploid set, and this is what is ploidy now. So एक इंसान ह्यूमन बीइंग की प्लॉइडी दोनों भी हो सकती है, डिप्लॉइड भी हो सकती है, Human being की सबकी मतलब सबकी It has 46 से होनी चाहिए, 23 हुआ तो human being रहता नहीं रहता. That's what I was trying to emphasize. Ploidy का importance क्या है? Species define करने के लिए, right? For our species, Homo sapiens, it is 46. So we should have 46, right? Now a question can arise. Meiosis में reduce हो जाते हैं, but then at the time of fertilization restore भी हो जाते हैं, ठीक है? Sperm and ova come together to give rise to 46 again, right? So this is how the entire body is 46 chromosome के cells वाला, right? Don't get confused. 23 pairs होंगे सिर्फ तो नहीं हो सकता human being. It will be a different species altogether, right? माइटोसिस में 46 रहते हैं, मियोसिस में 23 पेयर्स, तो होगा मियोसिस मियोसिस अगर एग बनने के लिए हो रहा तो एक एग जो बनेगा उसमें 23 पेयर्स होंगे. अगर oogenesis में spermatogenesis अगर हो रहा है तो 4 sperms बनेंगे. Each one will have 23 pairs of chromosomes. Each. क्योंकि 46 का डबल हो रहा and you're splitting each 46 वाला set into 2. So 46, 23, 23, 46, 23 and 23. Right? तो 4 sperms. यहाँ पे तीन disintegrate हो जाते एक cells. एक functional रह जाता. That's why it is containing 23. A doubt can arise anyway. क्योंकि इसमें भी double होता and divide होता तो एक ही functional रह जाता. क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन में रहते हैं, Chromatin से chromosomes बनते हैं. आप बोले कि एक क्रोमैटिन में 46 रहते हैं, एक क्रोमैटिन जो रहता है एक न्यूक्लियस का उससे 46 क्रोमोसोम्स बनते, राइट? हाँ, तो अपने पास बहुत सारे क्रोमैटिन, बहुत सारे एवरी सिंगल सेल, 46 क्योंकि वो हमारा क्रोमोसोमल नंबर है, स्पीशीज नंबर, दैट्स व्हाई. ओके,
Mitosis, equational division, it takes place primarily in diploid cells. ठीक है? Diploid cells, but in a few haploid cells as well. I hope diploid and haploid are very clear. Okay, what is making you smile and laugh? The question was for Shan. What? मुस्कुरा के. Meiosis. Now, meiosis takes place in? How can it take place in haploid? It takes place only in diploid cells. क्यों? क्योंकि 2n से n होना है ना, reductional. n/2 तो नहीं हो सकता. So that's why diploid में ही होगा ये, haploid diploid दोनों में होगा. Most of the cases में it takes place in somatic या फिर body cells. ठीक है? And it takes place in germ cells for the formation of gametes. Gametes are always haploid and a zygote, no matter what, is always diploid. It is a universal fact. मैं plant kingdom में पूछूँ, मैं animal kingdom में पूछूँ, zygote blindly to n, right? So this is about the mitosis and the meiosis thing. Now we'll exclusively discuss about mitosis. Now we are actually going to start the cell cycle. What does it mean and what are the steps in it? Right? We will have coffee. Coffee. Body cells, somatic cells. Body cells को somatic cells. Now, what do we understand by the term cell cycle? Nobody knows it. Nobody wants to answer it. Complete division of cells in one cycle. Cell cycle. ना एक cycle complete करने के लिए कितने cell divisions हो रहे हैं? The cyclic change is taking place inside of a cell for it to be able to divide. Don't do that. Cell cycle. Definition, it is there in your textbook. That is something which I said. The cyclic change is taking place inside of a cell to be able to divide.
So this is basically the diagrammatic representation of the cell cycle, right? It is basically divided into two major processes, your parts, that is your interphase and M phase. ठीक है, आपके इंटरफेस में 3 प्रोसेसेस आएंगे, दैट इज G1, S and G2. G refers to gap, okay, and S refers to synthesis. Gap 2, gap 1, gap 2, G in both. ठीक है, M phase में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज आ जाएंगे. ठीक है, so this is your cell cycle, interphase and M phase. Interphase is also said the phase जिसमें आपका cell is, you know, metabolically active but not dividing. या फिर उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ग्रोथ फेज, growth phase, and this can be written as a dividing, actual dividing phase. Out of the entire time of the cell cycle, more than 95% of the time the cell is in interphase. More than 95% of the time a cell is in interphase. Rest of the time only it takes for dividing, actual division process takes place. ठीक है, 95% interface, 5% growth. more than 95%. Rest of the remaining percentage डिवाइड करेगा. देखिए, अगर आपका एक सेल है, उसको 24 आवर्स, जैसे कि हमारा बॉडी सेल 24 आवर्स लगते हैं उसको डिवाइड होने में, तो आउट ऑफ द 24 आवर्स 23 या फिर 23.5 आवर्स आपका सेल इंटरफेस में ही होगा. बाकी जितना टाइम बचा, 1 या फिर आधा घंटा, उसमें एम फेज ये प्रोसेसेस होंगे एंड फाइनली आपका सेल डिवाइड कर जाएगा. क्लियर? If you want to add, you can add another line. It would be cytokinesis. And यहाँ तक आपका karyokinesis है. Karyo refers to Division of nucleus. nucleus, genetic material, prokaryotic, eukaryotic, right? Genetic material. तो जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन को हम बोल रहे हैं कैरियोकाइनेसिस, राइट? साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ योर साइटोप्लाज्म. क्लियर? साइटोप्लाज्म, राइट? साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस पहले होगा, उसके बाद आपका साइटोकाइनेसिस होगा. ठीक है, वो कैसे होगा? विल लुक एट इट. इतने स्टेप्स में होता है. End of telophase, karyokinesis is completed. After that, for the cell to divide, cytoplasm का division होना important है, उसको हम cytokinesis बोलते हैं. This completes your cell cycle. Done? Now, this is your cytokinesis. This is the cytokinesis. इंटरफेस से टीलोफेस तक कैरियोकाइनेसिस है. बस साइटोप्लाज्म. इंटरफेस प्रिपेयरिंग फॉर दिस एम फेज, प्रिपेयरिंग फॉर द एम. हाँ, प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं उसको, ग्रोथ फेज बोलते हैं. मैंने मल्टीपल टर्म्स, यू नो, नॉन डिवाइडिंग, मेटाबॉलिकली एक्टिव. इट इज द मोस्ट क्रूशियल फेज. ठीक है, प्रिपरेशन हो रहा फॉर द डिवीजन. शाइस्ता, we are going to cook something. Your preparation time obviously will be longer than your cooking time, most of the cases में, you know. The same applies in here. Your preparation time for your entrance is way more longer than your actual examination time period, you know. Yeah, so it's that. तो जीवन फेज में हम लोग क्या देखते हैं?
it is the longest phase. Okay, it is the longest phase. The cell is the most active metabolically in G1 phase. Am I clear? Start noting down. These are all very important pointers. Okay, the cell longest phase, cell is metabolically active. I'll erase this side. Metabolically active. ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होता, ऑर्गेनल्स डुप्लीकेशन जी. हैव दिस क्लैरिटी इन माइंड. एफ फेज में हम लोग क्योंकि कैरियोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं, योर मेन फोकस विल बी एस फेज में सिंथेसिस या फिर डुप्लीकेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. क्लियर? सो डुप्लीकेशन ऑफ ऑल द अदर थिंग्स, क्योंकि प्रिपरेशन में यहाँ पर भी डुप्लीकेशन होगा, मतलब सिंथेसिस होगा कुछ सामान का, यहाँ पर भी होगा, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का होगा. ठीक है? तो जीवन, yeah, the essential ones, you know, if we be really specific, आप लोग को उतना है नहीं, that's why I did not mention. If at all questions में आएगा we'll do that, but in general जो भी vital आपके organelles होंगे उसका duplication जीवन में होगा. RNA and the proteins का भी synthesis आपके जीवन में होगा. ठीक है? This is the longest phase. RNA and proteins का भी duplication. Synthesis, duplication नहीं, synthesis. They are being synthesized, right? Duplication जैसे कि mitochondria by fission, you know, duplication से synthesize होता. RNA और आपके जो सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं ना, वो लोग डुप्लीकेट, मतलब वो लोग की और कॉपीज बन रहे हैं. डुप्लीकेशन मतलब क्योंकि लेट्स नॉट गिव दिस एग्जांपल. आपके पास सामान है, आपको दो में बांटना है, तो ऑब्वियसली एक जैसा सामान दूसरे के लिए भी लाना पड़ेगा, राइट? तो वही दूसरा कॉपी बना रहे हो आप. दैट इज बेसिकली डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनल्स, राइट? उसके बाद आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आपका ये प्रोसेस होता रहता है, उसकी रिक्वायरमेंट रहती है. ठीक है, हो गया. दीज आर द थिंग्स. अगेन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता है जिसकी वजह से सेल साइज इंक्रीज होता. इंक्रीज, ठीक है, सेल साइज increases in the G1 phase. Why? Because of proliferation of the cell in terms of growth of cytoplasm. ठीक है, cytoplasmic growth ज़्यादा active रहती है. That's why the cell grows in size. Now, when we are talking about, जी हाँ, बढ़ जा रहा, उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स बढ़ रहे, उसके अंदर आरएनए और प्रोटीन सब कुछ बढ़ रहे, राइट? सामान बढ़ रहा तो आपको घर भी बड़ा चाहिए, राइट? तो द सेम थिंग. अब क्योंकि जब मैं सेल साइज की बात कर रही हूँ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई द सेल्स डिवाइड इज टू मेंटेन कर्न साइटोप्लाज्मिक रेशियो. इफ यू पीपल आर कर्न cytoplasmic ratio, understand it in the simplest way possible. Genetic material is to cytoplasm का रेशियो बैलेंस होना है एक सेल के लिए जब वो इंटरफेस में रह रहा. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक सेल डिवाइड कर ले रहा. ठीक है, आज एक स्किन सेल डिवाइड करके कल न्यू बन गया तो उसकी लाइफ स्पैन 24 आवर्स की ही है. वो 24 आवर्स में वो क्या कर रहा है, एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा, बट अदर देन दैट वो न्यू सेल बनाने की तैयारी में है. तो टेक्निकली स्पीकिंग एवरी सेल मोस्ट ऑफ द टाइम इन आवर बॉडी इज ऑब्जर्व्ड इन इंटरफेस, राइट? So, in order to maintain the current cytoplasmic ratio, मतलब जेनेटिक सब्सटेंस बढ़ रहा है यहाँ पे इंटरफेस में. क्योंकि मैं बोल रही हूँ इंटरफेस में मैक्सिमम ऑफ द टाइम रहेगा आपका सेल, एवरी सेल, मैक्सिमम ऑफ योर सेल्स, बॉडी सेल्स. ठीक है,
to maintain the ratio, it has to divide. So it becomes a necessity, right? Kern cytoplasmic ratio. Apart from that, क्योंकि उसका size बढ़ा, उसका surface area when compared to this and this, किसका surface area ज़्यादा होगा? The 4 one. क्योंकि ये surface areas, they are elaborating. If we have more surface area, exchange of the substances and the processes will be more efficiently working in our body, right? So again, these two are the major reasons you can consider for cell to divide. It becomes a necessity, in order for them to be able to increase the surface area. Divide करेंगे तो बढ़ेगा. Kern cytoplasmic ratio, because they are continuously in the growth phase, right? अब we have attained the growth phase. कहीं ना कहीं इंजरी, रिपेयर, कोई सेल की लाइफ स्पैन हो गई, न्यू बनना है. सेल डिविजन इज अ मस्ट, इट्स अ नेसेसिटी फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ बॉडी. सो ये 2 रीजंस की वजह से भी आपका सेल डिवाइड करता है. कर्न साइटोप्लाज्मिक रेशियो एंड टू मेंटेन द सरफेस एरिया, द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया. क्लियर? एनी डाउट्स? इंटरफेस में जेनेटिक मटेरियल बढ़ा, साइटोप्लाज्म बढ़ा. ठीक है? तो एक सेल के पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल ही रह सकता. सेफ रेशियो. You have a capacity for eating. A cell has the capacity to have the amount of cytoplasm and genetic material. उससे ज़्यादा हो गया तो डैमेज हो सकता है, it cannot survive, burst हो सकता, कुछ भी हो सकता. सॉरी? हाँ बेटे, तो वो बढ़ रहा, इसीलिए मेंटेन करने के लिए इट इज डिवाइडिंग, राइट? वो डिवाइड क्यों कर रहा? क्योंकि उसको मेंटेन करना है, राइट? मेंटेनेंस के लिए वो डिवाइड कर रहा. दूसरी चीज, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. ठीक है? जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, उतने ज़्यादा आपके प्रोसेसेस स्मूथली रन करेंगे बॉडी में. क्लियर ना? ये हो गया इंक्रीज इन सेल साइज, the essentiality. You need to remember this thing. Now, moving on to S phase. इसको synthesis phase भी बोलते हैं. ठीक है? इसमें क्या होता है? डुप्लीकेशन या फिर रेप्लिकेशन ऑफ DNA. This is the trickiest one, if we consider. Please understand it on a conscious basis. Subconsciously बैठ के मत सुन लीजिए, passive. ठीक है? We have 46 chromosomes. We do? Yes. Yeah, we do. अब एक strand है. This is your chromatin basically. The entire long chromatin thread. ये है. S phase में क्या हो रहा है? It has to be synthesized, मतलब इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लिया, बना दिए, एक और बन गए. अब इससे कितने क्रोमोसोम्स बन सकते हैं? 46. इससे कितने बन सकते हैं? 46. तो ये दोनों ऐड नहीं हो रहे. ओके? योर क्रोमोसोम नंबर विल बी द सेम, बट दिस इज नथिंग बट योर DNA, राइट? DNA का अमाउंट डबल हो गया. ठीक है? DNA बस DNA का अमाउंट डबल हो गया. क्रोमोसोम नंबर उसकी हर एक की डिफरेंट कॉपी. गुड क्वेश्चन शायद स्टेटमेंट रादर. मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 है टिल 46 है, एक सेट हो गया क्रोमोसोम्स का. अब वो चेंज कब होगा? मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 मेरा इतना है, ठीक है? दूसरी कॉपी भी उसकी इतनी ही बन रही. When would it change? अगर ये होता, 46 क्रोमोसोम्स है, उसके सिमिलर अगर क्रोमोसोम्स नहीं बनते, रादर डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के क्रोमोसोम बनते. समझिए ये चीज़ को. आप जो बोले ये 46 क्रोमोसोम्स है. क्रोमोसोम्स दोबारा भी तो बन रहे ना, बन रहे, बट chromosomes are nothing but your DNA content. ठीक है? Understand that in the first place. तो DNA का कंटेंट डबल हो रहा है. हो गया DNA का अमाउंट डबल, क्योंकि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में जा रहा. अब क्यों क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो रहा? द रीजन इज
ये जो क्रोमोसोम्स है सिर्फ उसको डुप्लीकेट कर रहा है, राइट? उसका नकली कॉपी बना रहे, एक और कॉपी बना रहे। क्रोमोसोम नंबर चेंज कब होता है? जब क्रोमोसोम चेंज होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ क्रोमोसोम की एक और कॉपी बन रही, राइट? इफ आई मेक अ क्लोन ऑफ यू, it will not be a different human being. Identical twins, there are variations, but then more or less they are the same. Genetically, अगर हम लोग देखें, we can consider them one. The same thing is happening in here. It is the biggest, blunder every student can ever make in S phase, right? Chromosome number change कैसा नहीं होता मैम, DNA मैम कैसा double होता है. This is how it is happening. Duplication क्या होगा? One and the same. डुप्लीकेशन सब में हो सकता है. रेप्लिकेशन इज अ प्रिसाइज प्रोसेस जिसमें आपके बेस पेयर्स वगैरह की पेयरिंग हो. ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग यू कैन यूज ईदर. जब भी डीएनए डिवाइड होता क्रोमोसोम नंबर और एक सेट बनता, डबल नहीं होता. सिर्फ डीएनए का कंटेंट, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो रहा. ठीक है, लिख लीजिए खुले खुले साफ लफ्जों में, अमाउंट ऑफ डीएनए doubles. Number of chromosomes, this is chromosomes, remains constant. ठीक है, remains constant. That is it. Also one more thing, यहाँ पे आपके हिस्टोन प्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं. Histone proteins are synthesized in this phase. ये beads on the thread, ये जो हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं वो S phase में सिंथेसाइज होते हैं. ठीक है, नए बनते सिंथेसिस में, नए और ज़्यादा हिस्टोन प्रोटीन्स बन रहे. Can I erase that side? If you people want, I can erase this. क्योंकि पूरी एक लास्ट में briefly explain करना है. That's why I'm not erasing this side. That is done. वही you should follow. ये हो गया next step. अब next ये होगा. ठीक है. At the end I'll have to summarize as well, right? I can't redraw. नहीं लिखे थे आप? In S phase. Okay. जब एनिमल्स में या ह्यूमंस में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक हो रहा है, सेल डिवीजन नहीं ग्रोथ, तो सेल प्लांट्स में कंटिन्यूअसली कैसा हो सकता है? सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे. They have apical and lateral meristems, जिसमें हमेशा सेल ऐसे सेल्स रहते हैं जिसके अंदर डिवाइडिंग प्रॉपर्टी रहती है हमेशा. पर्पस अलग हो जाता है. दिखाते रहते. ग्रोथ एक एज तक रहता, डिवाइड हमेशा होते रहता. आपकी स्किन सूख जाती, खत्म हो जाती. नो, आई कांट इवन इमेजिन कि स्किन लेयर सालों तक पूरे फॉर अ लाइफ टाइम. ओह माय गॉड, समथिंग आई कैन इमेजिन. डिहाइड्रेशन. Lack of moisture. चार बन रहे ना, इसलिए 4 सेल्स बनते हैं मियोसिस में. क्योंकि एस फेज में डबल हो रहा, डबल का हाफ हाफ होना है, इसीलिए 4 बनते. 4 एग्स नहीं बनते, एक एग बनता, 3 डीजेनरेट हो जाते, 4 स्पर्म्स फंक्शनल रहते. ठीक है, गेमेटोजेनेसिस. 4 ओह माय गॉड, रिलीज होने से पहले ही डीजेनरेट हो जाता. वो जेनेसिस में पढ़ेंगे, डोंट कॉम्प्लिकेट योरसेल्फ.
Just remember, mitosis give rise to 2 daughter cells, meiosis 4 daughter cells. Write it down. Mitosis, two daughters. Right? G2 phase is the last phase of your interphase. How can it be of division? Before division, right? Interphase में it is not dividing, absolutely. ठीक है? Not dividing but active phase of a cell, right? So G2 phase will be the last phase of your interphase in which आपके tubulin proteins का वो हो रहा synthesis. Tubulin proteins, microtubule से ही तो पूरा cytoskeleton बनना है, right? Tubulin protein का synthesis हो रहा क्योंकि आपके जो नया सेल बनने वाला है उसके अंदर पूरा साइटोस्केलेटन देना है. बहुत सारी जगह पे ट्यूब्यूल्स का यूटिलाइजेशन होने वाला है, इसीलिए ट्यूबुलिन प्रोटीन एक्सक्लूसिवली ज़्यादा अमाउंट में होता है सिंथेसाइज इन द G2 फेज. व्हाई? बिकॉज इट इज़ ऑन द वर्ज टू स्टार्ट टू डिवाइड. ओके, द सेल इज प्रिपेयरिंग टू डिवाइड नाउ. यहाँ पर उसका मोटिव ग्रोथ था, यहाँ पर नाउ इट इज प्रिपेयरिंग टू डिवाइड. इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द एम फेज. क्लियर ना? जी, डुप्लीकेट और रेप्लिकेट हो रहा है, इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा. और यहाँ पर हम डिवाइड, डिवीजन, सेल की बात कर रहे हैं. डिवीजन ऑफ दिस सेल, द सेल इज प्रिपेयरिंग टू डिवाइड. डुप्लीकेशन में द सेम कॉपी इनसाइड ऑफ अ सेल हो रहा, डुप्लीकेशन, राइट? व्हेयरएज डिवीजन एज अ होल सेल का हो रहा, सेल इज डिवाइडिंग, उसके ऑर्गेनल्स अंदर डुप्लीकेट हो रहे. ठीक है? नाउ Sumit, ask me. I'm in the class. Sorry, I was listening to them. You should be louder. Yeah. If I don't listen once, you should say it twice. If not even twice, thrice. Till I listen, you're supposed to ask. क्या था बोली? जब सेल डिवाइड हो रहा है ना, जो दूसरा सेल है बनने वाला सेल, बनने वाला हाँ. सेल. If anybody I see a slightest of the smile, either I will notice, either you people walk out, and I'm pretty serious. And I will not repeat this every day as a जो पढ़ाते हैं ना, एक स्टेटमेंट बच्चे को याद रोज कराना है. I won't repeat it. Mark my words. Every single one of you, including you. आपके लिए भी था बेफिजूल मुस्कुराना और हंसना नहीं. बोलिए. बन रहा नहीं, जो भी चीज़ें होना है वो तीनों फेज में डिवाइड होके बन रहा. इसमें थोड़ा सामान बन गया, इसमें बाकी सामान बन गया, इसमें जो बचा हुआ सामान है वो बन गया. ठीक है? उसके सिर्फ नेम्स डिफर हो रहे हैं. यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन बन रहा, यहाँ पे आपका डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा. ठीक है? यहाँ पे बाकी ऑर्गेनल्स का डिवीजन हो रहा. राइट? So you people, did you? नहीं, this is the first time आप लोग सेल डिवीजन पढ़ रहे. मतलब, are you people familiar? नहीं, for me to be able to ask a question. After you people solve the question. ठीक है? आप लोग में से कोई तो पूछे थे ना कि सिंथेसिस और डुप्लीकेशन का डिफरेंस. आप रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन पूछे. सिंथेसिस, इफ वी स्पेसिफिक एस फेज, पूरा सेल एस फेज में है ना. शिफ्ट योर फोकस. जी हाँ, फंक्शंस है वो. ठीक है ना? समझिए, द सेल
इट इज इन द सेल साइकिल का इंटरफेस का एस फेज है। तो उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपका जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन हो रहा है, यस और नो? यस। तो साइटोप्लाज्म में भी डुप्लीकेशन या फिर सिंथेसिस होता, ऑर्गेनल्स का हो रहा, राइट? ऑर्गेनल्स का साइटोप्लाज्म में ही हो रहा, जीवन फेज इंक्रीज हो रहा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ रहा ना। तो क्वेश्चन इज, जब भी सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, वी हैव ऑलवेज स्पोकन अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, फरो मेथड एंड यहाँ पे सेल प्लेट मेथड, एनिमल एंड प्लांट सेल मेथड है। Which is the organelle which facilitates the cell division in plant animal cells? Good, centrioles. Which are the cell organelles? Yeah, what is the cell organelle which facilitates the cell division in an animal cell? Centrioles. When S phase is, the cell is in S phase, इंटरफेस के एस फेज में जब है आपका डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है इन द न्यूक्लियस, एट द सेम टाइम साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल्स का भी डुप्लीकेशन होता है। क्लियर? इज इट मेकिंग सेंस? उसको ही डिवाइड करना है, इसीलिए उसका भी डुप्लीकेशन एट द सेम टाइम हो। ठीक है? पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स मेक अ क्रोमैटिड सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम भी डिवाइड एक ही सेंट्रोसोम रहता ना, तो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनती है क्योंकि दो पोल्स पे भेजने का है, इसीलिए। क्लियर? रिमेंबर दिस थिंग, इट इज इम्पोर्टेंट। क्लियर? नाउ आप सबको मालूम है साइटोकाइनेसिस। सुनिए सुमित, एनिमल सेल्स में कैसी होती? गुड, फरो मेथड। प्लांट सेल्स में गुड, सेल प्लेट मेथड। ठीक है, सेल प्लेट मेथड। फरो डीपन होके वो ग्रूव बनता, साइटोप्लाज्म तब जाके डिवाइड हो। कैरियोकाइनेसिस में सेंट्रियोल्स का रोल रहता, डू नॉट कंफ्यूज। ठीक है, दोनों ही डिवीजन के लिए एसेंशियल है। कैरियोकाइनेसिस के लिए मेजर रोल इज प्लेड बाय सेंट्रियोल्स, अगर देखा जाए तो। वैसे तो सबका ही अपना मेजर रोल है, यूनिक टू एनिमल सेल्स। अगर हम लोग देख रहे तो सेंट्रियोल्स होगा फॉर कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि स्प्लिटिंग डिवाइडिंग इनटू टू सेल्स। नाउ कमिंग टू साइटोकाइनेसिस, फरो मेथड से आपके एनिमल सेल्स में होता है, सेल प्लेट मेथड से आपके प्लांट सेल्स में होता है। ठीक है, सेल प्लेट मेथड में यू नीड टू रिमेंबर कि फ्रैगमोप्लास्ट करके एक स्ट्रक्चर रहता है जिसकी वजह से आपकी सेल प्लेट बनती, एंड दिस इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रोसोम। सेंट्रीपीटल डायरेक्शन में ये हो गया आपका सेल। द ग्रूव इज मूविंग डीपनिंग टुवर्ड्स द सेंटर। एनिमल सेल, ये ग्रूव डीप हो के जब दोनों यहाँ पे आके मिलते स्प्लिट हो जाता सेल इनटू टू सेल्स, वो ग्रूव बनता। Genetics, genetic material directs the cell for the cytokinesis to occur. ठीक है, वो हो रहा तो centripetal fashion में हो रहा, right? So cell furrow method is, also considered as a centripetal fashion of division. Towards the center, directing towards the center. Centrifugal होगा cell plate method. ठीक है, ये आपका सेल है, इसके बीच में कहीं आपके cell plate बनेगी, the phragmoblast. It will give rise to middle lamella, and towards the periphery आपकी new middle lamella बनता है, and that's how the cell is divided into two. Plant cell, right? तो इसीलिए center से periphery को जा रहा centrifugal होगा, centrifugal. I hope it isn't causing any sort of a confusion, right? Centrifugal, centripetal. Sorry? We are discussing क्योंकि वो छोटा ही था and I spoke about centrioles, so I completed that first. वो उसके बाद ही होगा. Talking about
फरो फरो कहीं भी एक गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर होगा फरो. रैबिट्स दे बोरो दिस थिंग, तो जाके रह जाते हैं. एंड कहीं भी फरो मतलब अ ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर विच इज डीप इन इट, तो इसीलिए फरो मेथड बोलते हैं. प्रोफेस is the first phase of your M phase. अब G1 phase is the phase in between M phase and S phase. ऐसे questions you people can do, right? सिर्फ ये याद रखना है. M phase और S phase के बीच में जो phase आएगा that would be G1 phase, right? G1 and G2 के बीच में S phase. Prior to M phase G2. Prior मतलब पहले. Prior to M phase would be G2. Post M phase G1. Post M phase उसके बाद G1. ठीक है? पोस्ट बोले तो बाद बाद. प्री मतलब पहले. प्री. सो प्रोफेस में बेसिकली होता ये कि आपका जो प्राइमोब्लास्ट, मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी में आई बी एक्सप्लेनिंग टू यू अबाउट दैट. इट इज अ स्ट्रक्चर व्हिच gives rise to the cell plate, जिससे मिडिल लैमेला पूरी वॉल फॉर्मेशन पढ़ाना ही है, तो वहाँ पे पढ़ लेंगे. क्रोमैटिन condenses to form chromosomes. ठीक है? प्रोफेस में क्या हो रहा है आपके? Initiation of condensation of your chromatin material is taking place in your prophase to form chromosomes. Right? के अंदर Chromatin condense हो रहा, कंडेंस हो रहा. ओके. किसमें? क्रोमोसोम्स आ रहे. बन रहे. प्रोफेज में वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया. मेटाफेज में जाते जाते कंप्लीट हो जाता. क्लियर? नाउ इन दिस आपके लेट प्रोफेज होते होते द न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर्स. लेट प्रोसेस में मतलब प्रोफेज अब अगर 5 मिनट का है, 4 मिनट हो गए, लास्ट 1 मिनट बचा हुआ है, तो लेट प्रोफेज बोलेंगे, है ना? उसका खत्म होने का फेज. न्यूक्लियर एनवलप क्रोमैटिन के अंदर कंडेंस हो रहा. कंडेंस होके जी बोलिए. क्रोमैटिन के अंदर कंडेंस होके क्रोमोसोम्स. एक धागा है, धागे को बाइंड करना स्टार्ट कर रहे टू मेक दिस शेप. दैट इज कंडेंसेशन. समझ आया? अर्शिन, यू वर डिस्कसिंग समथिंग. सुबह में हम ये पढ़े थे. Nuclear envelope is after an environment. Or common. Yeah. The matrix inside of the nucleus. So my question now is, न्यूक्लियर एनवलप डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो उसके साथ साथ और क्या चीज़ें डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी? गुड. या न्यूक्लियस ऑल्सो डिसइंटीग्रेट. ठीक है? न्यूक्लियस. अर्शी, आपको हर चीज़ 50 बार रिपीट करने तक दिमाग में नहीं जाती. फिर क्यों नहीं जा रही हो? हाँ. लेट प्रोफेज. नहीं, उससे एक सेकेंड. गोल्जी एपरेटस है, सेक्रीशन है ना उसका, लाइसोसोम, देन इट इज मॉडिफाइंग. स्ट्रक्चरल जो एसोसिएटेड ऑर्गेनल्स है वो डिसअपियर हो, इसीलिए वो थी लेट प्रोसेस. मतलब आपका प्रोसेस खत्म होने आ रहा. ओके, वो होने वाला है. तो एट दैट टाइम आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेल है, सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो
डिसइंटीग्रेट हो रहा धीरे धीरे, क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साथ में ही ड्रॉ किए थे ना, तो इसके बहुत पास में आप गोल्जी एपरेटस ड्रॉ किए थे ना, इसके अंदर न्यूक्लियोलस ड्रॉ किए थे ना, तो ये सारे भी तो डिसअपियर हो जाएंगे ना, तो वही हो रहा अच्छा भाई GAE क्या गोल्जी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं बोल दी ना, आप लिख लीजिए। सॉरी, डिसइंटीग्रेट मतलब डिसअपियर भी लिख दे सकते हैं आप, चलिए। disappears radioactivity, radioactive elements bit by bit disintegrate हो रहा, disintegration constant, that is the language of Shaistan. So disintegration, अभी वो भी होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना, हाँ। So at the same time आपका जो सेंट्रोसोम है राइट, प्रोफेज में ही ना, बिफोर इट एंटरिंग द लेट प्रोफेज, in midst of that आपके जो सेंट्रोसोम है they will release the asters. Asters मतलब माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। देखिए आपका सेल है, सेल हैव एंटर्ड प्रोफेज, तो उसका न्यूक्लियर ये डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया। एट द सेम टाइम आपके जो सेंट्रोसोम्स है दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द पोल्स, पोल्स पे चले गए, पोल्स पे जाने के बाद एस्टर्स रिलीज कर रहे, एस्टर्स के साथ स्पिंडल फाइबर्स भी रिलीज कर रहे, स्पिंडल फाइबर्स। अब ये क्यों कर रहे, क्योंकि मेटाफेज में मेटाफेसिक प्लेट पे जब अलाइन हो जाते दे हैव टू अटैच टू द काइनेटोकोर्स राइट, सो दे आर प्रिपेयरिंग। तो आपके सेंट्रोसोम्स दे मूव टुवर्ड्स द पोल्स, दे रिलीज द एस्टर्स एंड देन द स्पिंडल फाइबर्स, एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स टुगेदर फॉर्म द स्पिंडल apparatus. Sumit, centrosome. Asters are again, tubular structure, क्योंकि it appears like a star-like thing. इसको asters. साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो रहा है, इस फेज में हम लोग डिस्कस किए, हो रहा, वो रैंडमली कहीं भी हो सकता है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम कहीं भी डिवाइड हो रहा है साइटोप्लाज्म में, रैंडम साइटोप्लाज्म कहीं भी हो रहा। जब प्रोफेज में एंटर हो गया तो ये न्यूक्लियस हो रहा, डिसइंटीग्रेशन, कंडेंसेशन हो रहा, तो दैट मीन्स स्पिंडल फाइबर्स को भी रेडी करना है। तो इसीलिए आपके जो सेंट्रोसोम रहते हैं पोल्स की तरफ हेड होते हैं, एंड व्हेन दे रीच द पोल्स, दो पोल्स पे चले जाते हैं, एस्टर्स रिलीज करते हैं लॉन्ग। आपको जैसे सही समझ में आ रहा है वैसे, गलत नहीं समझना कुछ और वर्ड बोल के। पोल्स, ठीक है, एस्टर्स निकल गए, स्पिंडल फाइबर्स निकल गए, स्पिंडल apparatus इज रेडी बाय द एंड ऑफ योर प्रोफेज। क्लियर? नाउ जस्ट 3 phases will wind up. साइटोकाइनेसिस हो गया राइट, इवन आई एम हंग्री। नाउ कमिंग टू मेटाफेज, यहाँ तो बहुत शॉर्ट है, एक प्रोफेज ही ज़्यादा टाइम करने में था। मेटाफेज में क्या होता, कंप्लीटली कंडेंस हो गया आपके क्रोमोसोम्स, कॉम्पैक्टली कंडेंस्ड। दिस इज द फेज जिसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स इज बेस्ट स्टडीड। अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। मेटाफेज में compaction completed. After that इसमें 3 स्टेप्स ही होते हैं।
आपका जो क्रोमोसोम है कम्प्लीटली कॉम्पैक्ट हो गया, वो होने की वजह से उसकी मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं आप क्रोमोसोम की व्हेन द सेल इज इन मेटाफेज। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज सारे जो क्रोमोसोम्स होंगे आपके दे अलाइन देमसेल्व्स स्पिंडल इक्वेटर, जिसको मेटाफेसिक प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज योर मेटाफेज। यहाँ पे ऑलरेडी आपके एस्टर्स रिलीज होके अब मेटाफेज में दे कम एंड अलाइन। आफ्टर अलाइनमेंट द स्पिंडल फाइबर्स दे अटैचेस टू द काइनेटोकोर्स। ठीक है, सेंट्रोमियर है ये, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है, उसके ऊपर जो प्लेट है वो काइनेटोकोर्स है। हाँ, ये सारे क्रोमोसोम्स है, तो इसको मेटाफेसिक प्लेट पे अलाइन हो गया बोलना। क्रोमोसोम्स रैंडमली तो मतलब डिसइंटीग्रेट जब होता है ना न्यूक्लियस, तो जब क्या होता है क्रोमोसोम? वो लोग कंडेंस होते ही रहे। ठीक है, वो डिसइंटीग्रेट होके दे आर डिसइंटीग्रेट पोल्स पे जा रहा। अब हमें ऐसे बोला सेल है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा, तो यहाँ पे कॉम्पैक्शन चल रहा, यहाँ पे सेंट्रियोल्स चले गए आपके सेंट्रोसोम्स, ये डिसइंटीग्रेट पूरा हो गया। बाय दैट टाइम आपके क्रोमोसोम्स बन के रेडी है। रेडी है। प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में ये सब हो गया। मेटाफेज स्टार्ट होते होते ये कंप्लीट हो गए, होने की वजह से दे विल अलाइन देमसेल्व्स इन अ सिंगल लाइन स्पिंडल इक्वेटर, राइट। अब वो क्योंकि अलाइन हो गए तो ये लोग के जो काइनेटोकोर्स है जाके स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते, एंड दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज हो गया। आप लोग अपने ओन वर्ड्स में लिखिए, आई एम इरेजिंग बिकॉज वी हैव टू फाइंड इट आउट। अब है एनाफेज। मेटाफेसिक प्लेट। अच्छा, मैं एनाफेज का नीचे लिख देती हूँ। बन गए। Anaphase. Okay, listen everyone. Anaphase is the shortest phase, right? In that, आपका splitting of centromere takes place. कैसे? आपके spindle fibers they shorten, जिसकी वजह से it causes a pressure and it causes the centromere to break, split into two halves. Good. Two sister chromatids they split. ठीक है? By the splitting of the centromere, and when the sister chromatids separate, so each chromatid now is known as the daughter chromosome. ठीक है, daughter chromosomes they trail, मतलब ये लोग के जो chromatids है they are trailing right towards the poles, खींचे जा, the being trailed. Now this is how the anaphase looks like. इसमें that is why अगर आपका मेटासेंट्रिक होगा तो ऐसा दिखेगा, सब मेटासेंट्रिक होगा तो क्रोमोसोम्स ऐसे दिखेंगे डिपेंडिंग ऑन दी Position of the centromere. good depending on the position of your centromere different shapes of chromosomes can be seen. इसीलिए shapes of chromosomes are best studied under anaphase. Clear? Now मैं मेटाफेज इरेज कर रही हूँ.
Yeah, towards opposite poles. नहीं तो एनाफेज होता ना. लेट मेटाफेज नहीं, सब मेटाफेज कुछ नहीं होता. What is सब मेटा? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हो रहा. Depending on ये मेटासेंट्रिक हो गया, slightly away from the center. सब मेटासेंट्रिक, okay? To the poles and decondense. Decondense nuclear membrane. Slow. Reforms from nucleotides and nucleus. Now, telophase is the last phase of M phase. Okay, in that आपके जो daughter chromosomes है, meaning the sister chromatids which were earlier together, part of the same chromosome. Now they are reaching the poles. ठीक है? They are reaching the poles. They reach the poles. Now they start to decondense. ठीक है? They start to decondense. टाइटली बाउंड कर दिए, फिर लूज हो जाए. ठीक है? डीकंडेंस, कंडेंस होके क्रोमोसोम बन रहा था ना, क्रोमैटिन वापस से डीकंडेंस होके क्रोमैटिन स्ट्रैंड्स बन जाते. हो गया. ये डीकंडेंस होने के बाद आपका न्यूक्लियर एनवेलप इट स्टार्ट्स टू रीअपियर, जिसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस एंड न्यूक्लियस अगेन रीअपियर्स. दिस कंप्लीट्स योर कैरियोकाइनेसिस. क्लियर? उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता. कैरियोकाइनेसिस आपका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो गया. डिवाइड हो गया, हो गया ना तुम्हें. अब क्योंकि हम लोग एनिमल सेल्स की बात कर रहे हैं, ये डीप हो के इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स. इंडिविजुअल्स बन रहे, सेल्स बन रहे. किसका सेल? एनिमल सेल. अभी आप प्लांट बोल रहे हो? मैं एनिमल बोल रही हूँ. एनिमल सेल्स. इट्स ओके. अपना सेल I know. बोल रहा है, हमेशा आप एनिमल बोल रहे हो, ऐसा चीज एनिमल से बताता चांस भी होता Clear? Karyokinesis done, and cytokinesis will be happening that way in the entire, plants and animal bodies. Interphase, M phase. Talking about the G0 phase, it is the phase which is also known as your the cells which exit G1 phase, they enter the G0 phase. ठीक है? नहीं, they will not further continue, they will exit the cell cycle. ठीक है? The cells, they do not divide but are active. Okay? For instance, your neurons, they don't divide. Your cardiac cells, they do not divide because the cells are in the G0 phase. That does not mean that the cell is dead or it cannot divide. Cell cycle suspend नहीं हो रही, वो exit कर रहा cell cycle को. Okay? There is a difference between both. Be very clear with it. Questions में आते हैं. पूरे जीना फेस में Sorry? क्या क्या इतने सारे? डिवाइड हो रहे हम्म. आपके बॉडी में कम चीज़ें हो रही है ना. पूरी MBBS सिर्फ ह्यूमन बॉडी स्टडी करने में 5 से ज़्यादा साल लग जा रहे, फिर मास्टर्स करने के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ स्टडी द कॉम्प्लेक्सिटी. जी होता ही रहता. स्किन सेल्स की बात की है ना शाना, आज मेरे न्यू सेल्स बन गए मिडवे. अगर मैं वी डोंट नो कब स्टार्ट हो रही सेल साइकिल, अगर मैं जब उठी तब से भी ले रही हूँ, तो दोबारा मैं सो के जब कल उठूंगी तब तक एक सेल मेरा मर गया. इट विल ऑलरेडी गिविंग राइज टू 2 न्यू सेल्स, राइट? डीजेनरेट बहुत काम करते हैं. आपकी बॉडी, नॉट यू. Technically, it's you. जी
Karyokinesis is this. The whole